Hello and welcome in our today's class, and today we are going to do our second poem in English literature, and that is On Time. First of all, about the poet. This is a very beautiful poem about John Milton, who was born on 9 December 1608 and died on 8 November 1674. Was an English poet, pamphleteer and historian, means he also wrote many things on history in his life. He is best known for writing Paradise Lost in 1667, which is widely regarded as the greatest epic poem in English. You know about John Milton. In a very early age, at the age of 42 or 45, he became blind. So after that, he wrote so many beautiful poems, and one epic was there, that is Paradise Lost, and after that he wrote another epic, and that was Paradise Regained. Okay, so the Paradise Lost, it was a very beautiful epic, and it achieved so many glorious awards at that time. So he was a prominent author during a time of political upheaval and religious fluxes. At his time there was a political upheaval, यानी कि राजनीतिक उठापटक जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर चलती थी, एंड रिलीजियस फ्लक्स यानी कि धार्मिक जो है वो फ्लक्सेस भी थे, उतार चढ़ाव वहाँ पर थे, जो धर्म है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चाएं वहाँ पर होती थी. पीपल टॉक्ड सो मच अबाउट रिलीजन एट दैट टाइम. हिज पोइट्री एंड प्रोज रिफ्लेक्ट डीप पर्सनल कन्विक्शंस. This is a very beautiful thing here, that he wrote about the personal feelings in his poetry. उसने हमेशा एक व्यक्ति की भावनाओं को प्रस्तुत किया है हमेशा अपनी पोइट्री के अंदर, एंड पैशन फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन. और उसकी पोइम के अंदर हमेशा एक पैशन रहा है, एक जोश रहा है सेल्फ डिटर्मिनेशन का और उसके साथ साथ में फ्रीडम का. तो ये तो था पोइट के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू डू अबाउट द पोएम, व्हाट इज in this poem. Okay, so in the poem On Time, Milton deals with the idea that life on the earth is wrought with constant change and decay. Means the poet is saying here in this poem that in this life on earth there is always a constant change in every person's life. Sometimes it's a bad time, sometimes there is a good time. So it is a poem essentially about surviving in a crazy world where time influences the life of people. So here the poet is saying here in this poem that a people is surviving in a very crazy way in this life. कि इस जीवन के अंदर एक व्यक्ति बहुत ही क्रेजी तरीके से सरवाइव कर रहा है, पागलपन की स्थिति है, क्योंकि उसके जीवन को जो है वो बहुत ज़्यादा, हर व्यक्ति के जीवन को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जाता है समय के द्वारा. The poet emphasizes the humans can escape the ravages of time by attaining an eternal life in heaven by leading a pious life. तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है कि जो जोर दे रहा है कवि कि ह्यूमन कैन एस्केप द रेवेजेस ऑफ टाइम, ह्यूमन कैन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम दीज डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ. ये जीवन के जो अलग अलग पहलू हैं इनसे एक व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है बाय अटेनिंग एन इटर्नल लाइफ, कि एक ऐसी अनंत जीवन को प्राप्त करके. इटर्नल का मतलब क्या होता है? इटर्नल का मतलब होता है कि द टाइम दैट नेवर एंड्स, वो समय जो कभी खत्म ही नहीं होता. तो एक ना खत्म होने वाला जीवन जो है उसको जी करके वो बहुत ज़्यादा खुशियां प्राप्त कर सकता है इन हेवन, वो भी कहाँ पर? स्वर्ग में. इन लाइफ देर इज, इफ देर इज एनी सोरो, देन इन हेवन देर इज लॉट ऑफ हैप्पीनेस. द पोएम इज सेइंग सेम थिंग हियर. सो बाय लीडिंग ए पायस लाइफ, एक बहुत ही पवित्र सा जीवन जी करके. Thus the poet's religious conviction is remarkable. So we can say here the poet's religious conviction, religious thoughts is very remarkable here in this poem. Okay, so let's start this poem. On time, fly, envious time, till thou run out thy race. Fly. Here he is writing this fly in capital word. And fly means go away. You know very well, fly, चले जाना, उड़ जाना. Fly, चले जाना, go away.
Here the poet is saying to the time. यहाँ पर कवि टाइम को कह रहा है. क्या कह रहा है? Fly means go fast from my life. मेरे जीवन से बहुत तेजी से निकल जाओ. Envious time. Here the poet is comparing time with enviousness. ईर्ष्या के साथ में जो है वो उसकी तुलना करते हुए कहता है, वो टाइम को क्या कह रहा है? एनवियस कह रहा है, पर्सोनिफाइज कर रहा है उसको. कहता है कि एनवियस टाइम, ओ ईर्ष्या से भरे हुए समय, तुम चले जाओ. Go away from my life, oh envious time, go away from my life till you, thou means you, till you run out thy race. Thy means your. कि till you run out thy race. Race means pace, गति, speed. कि जब तक कि तुम्हारी जो स्पीड है वो बहुत तेजी से नहीं निकल जाती, तुम बस फटाफट यहाँ से चले जाओ. कि till जब तक कि you run out, तुम नहीं खत्म हो जाते, एंड नहीं हो जाता. रन आउट मीन्स एंड, दाई रेस, तुम्हारी गति जब तक खत्म नहीं हो जाती, मीन्स दैट बैड टाइम, दैट द टाइम विच इज फुल फ्रॉम सोरो, वेन एवर or till this time doesn't end in our life, you go away from my life. कि जब तक कि तुम्हारा ये जो समय है वो मेरे जीवन से नहीं गुजर जाता, तुम तेजी से जो है वो बस चलते जाओ और बहुत तेजी से मेरे जीवन में से निकल जाओ. आई एम रिवाइजिंग दिस लाइन अगेन. फ्लाई, गो अवे, एनवियस टाइम, और ईर्ष्या से भरे हुए समय, तेजी से निकल जाओ. टिल यू रन आउट योर रेस, टिल योर रेस एंड, कि जब तक कि तुम्हारी गति जो है वो खत्म नहीं हो जाती, मीन्स वो बुरा समय खत्म नहीं हो जाता, तुम यहां से चले जाओ. Call on the lazy laden stepping hours. Here the poet is calling, means requesting. Call means appealed to the bad time. The poet is appealing to the bad time and saying that on the lazy laden. Lazy laden means lazy. Lazy का मतलब होता है आलसी. Laden means एक unmarried girl. तो यहां पर वो कहता है कि जिस प्रकार से एक आलसी जो महिला है या लड़की है वो बहुत ही आराम से चलती है, उस प्रकार से चलने वाले समय, मीन्स कॉल, ही इज रिक्वेस्टिंग, अपीलिंग टू द बैड टाइम, दैट लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, कि पास द टाइम. लेजी लेडन मीन्स हियर टू पास टाइम वेस्टफुली, कि द टाइम दैट इज पासिंग वेस्टफुली इन माई लाइफ, गो अवे फ्रॉम माई लाइफ. टाइम stepping hours which is going away step by step from in our life. कि वो समय जो स्टेप बाय स्टेप मेरे जीवन से आगे निकल रहा है, मेरे जीवन में से निकल रहा है, उससे वो अपील कर रहा है, गो फास्ट फ्रॉम आवर लाइफ. कि वो टाइम, कि समटाइम्स यू नो वेरी वेल दैट व्हेन देयर इज ए बैड टाइम और द टाइम विच इज फुल ऑफ फ्रॉम सोरो इन आवर लाइफ, तो इट assumes that it is a very long time in our life. ऐसा हमें assume करते हैं हम, ऐसा लगता है हमें कि वो जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है हमारे जीवन में, गुजर ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा. अच्छा समय बहुत जल्दी से निकल जाता है, बुरा समय बहुत धीमे से निकलता है. तो इसीलिए वो यहाँ पर क्या कह रहा है? Here the poet is saying to the time that don't go step by step slowly from my life. So that's why he is saying, he is appealing to the bad time, that please go fast from my life as you can. Okay? Whose speed is but the heavy plummet space. Now again he is saying, he is telling us about the speed of time. He is saying that whose speed, which speed? The bad time's speed is like a heavy plummet space. Heavy plummet. Plummet means pendulum. You can see or you have seen so much time. This is a clock, and in this clock or in this type of clock there is a pendulum here which hangs and according to the time, जो समय के अनुसार जो है वो हैंग करता रहता है, वो घूमता रहता है, चलता रहता है.
ठीक है. सो दैट रन्स अकॉर्डिंग टू द टाइम. सो इट्स स्पीड इज वेरी स्लोली. जैसे ये एक पेंडुलम की स्पीड जो होती है वो बहुत धीमे होती है, तो उसी के समान वो कह रहा है कि हुज स्पीड इज, जिसकी गति है हमारे जीवन में, किसकी, वो बैड टाइम की जो गति है हमारे जीवन में, वो क्या है, बट द हैवी प्लमट स्पेस, कि वो एक क्या है, एक बहुत ही भारी भरकम प्लमट की गति के समान है. मीन्स द बैड टाइम इज गोइंग वेरी स्लोली फ्रॉम आवर लाइफ. दैट्स व्हाई ही इज अपीलिंग टू द बैड टाइम दैट डोंट गो लाइक ए लेजी लेडन, डोंट गो सो स्लोली फ्रॉम माई लाइफ, प्लीज गो फास्ट, फ्लाई, प्लीज गो फास्ट फ्रॉम माई लाइफ. इज इट क्लियर? Okay. And girt thyself with what thy womb devours. And now the poet is saying to the time, the bad time, that girt means eat, khana, eat in a large quantity, to eat in a large quantity. I have written already here the meanings of some words here so that you can understand it very well. So, and girt means to eat in large quantity. And the poet is saying to the bad time that please, whatever you want to eat, eat it. And girt thyself, eat yourself. तुम अपने आप में खा लो. With what thy womb devours. With what? Thy means your. वोम मीन्स, वैसे तो पेट होता है, कोक को बोलते हैं, स्टमक को बोलते हैं वोम, ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, ये टाइम के लिए बोल रहा है. एंड डेवोर्स का मतलब निगलना, ईट करना एक बार फिर, ठीक है. तो ईट क्विकली, क्वाइटली, ईट क्वाइटली. सो वट द पोइट इज सेइंग हियर, द पोइट इज रिक्वेस्टिंग टू द बैड टाइम दैट वट एवर यू वांट टू ईट, ईट इट क्विकली. मीन्स वट यू वॉन्ट टू स्पॉइल माई टाइम, जो भी समय तुम मेरे जीवन में नष्ट करना चाहते हो, जितना भी जो समय है तुम मेरे जीवन में तुम नष्ट करना चाहते हो, जो तुम मुझे नुकसान देना चाहते हो दे दो, पर जल्दी से निकल जाओ, ठहरे मत रहो. इसी चीज को वो कहता है कि एंड गर्ट दाई सेल्फ विद व्हाट दाई वोम डेवोर्स. मीन्स व्हाट द sorrow, the time which is full of from sorrow, whatever you want to girt means you want to destroy or you want to eat it in a large quantity. जो भी बड़ी मात्रा में तुम मुझे जो है वो मेरा नुकसान करना चाहते हो वो तुम कर दो, बट तुम जल्दी से मेरे जीवन से निकल जाओ. विच इज नो मोर देन व्हाट इज फॉल्स एंड वेन, क्योंकि जो भी तुम मेरा नुकसान पहुंचाओगे, कवि क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, कि विच इज नो मोर देन, जो मेरे लिए ज्यादा नहीं है, व्हाट इज फॉल्स एंड वेन, जो कि क्या है, फॉल्स एंड वेन. वेन मीन्स यूजलेस, जो मेरे लिए क्या है, बहुत ही यूजलेस है, फॉल्स है. जो भी तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे वो मेरे काम का नहीं है, वो मेरे लिए फॉल्स है. इसलिए तुम बस फटाफट मेरे जीवन का जो व्यर्थ समय है, जो यूजलेस टाइम है, उसे तुम बस खाओ और तुम निकल जाओ. मीन्स तुम जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो वो पहुंचाओ और तुम निकल जाओ. एंड मियरली मोर्टल ड्रॉस, क्योंकि मियरली मीन्स ओनली, बिकॉज इट इज ओनली mortal dross that is sure to end. Because here the poet is saying that whatever you want to eat, it is just for me a time that is sure to end. यानी कि मेरे लिए वो समय है जो निश्चित रूप से खत्म होगा. इसलिए तुम क्या करो, तुम फटाफट मेरे जीवन में जो भी तुम जो है नुकसान करना चाहते हो करो, क्योंकि वो मेरे लिए वो समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. तो तुम बस उस समय को निकालो और तुम चले जाओ. So little is our loss, so little is thy gain. Because whatever you will harm me, कि जो भी तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे, whatever you will harm me, so little is our loss. That the loss will be so little in my life, कि वो नुकसान मेरे जीवन में बहुत ही थोड़ा होगा. So little is thy gain, और जो तुम्हारा फायदा हुआ वो भी बहुत ही थोड़ा होगा. Okay? So I think you have understood these lines very well, and I am repeating it again so that it can be much clear to you. Fly envious time till
you run out thy race. Here the poet is saying to the time that go away from my life, go away from my life, oh envious time, go away from my life till you run out thy race. Means जब तक कि तुम जो है तुम्हारी गति मेरे जीवन में खत्म नहीं हो जाती, till your bad time doesn't end in our life, go away, go fast. Call on the lazy laden stepping hours. And the poet is appealing to the bad time that don't go like a lazy laden. The time which is passed wastefully, he is saying to that time, call on the lazy laden. Means the poet is appealing to the past time wastefully, the time which is passing wastefully in my life. He is appealing in our life, he is appealing to that time that don't go so slowly, stepping hours, that is going step by step, means that is going slowly in our life. He is saying that go fast, whose speed is but the heavy plummet space. कि whose speed is, जिसकी गति क्या है, but the heavy plummet space, जिसकी कि एक भारी भरकम पेंडुलम के समान है, उससे वो कह रहा है, because the pendulum's speed is very slowly. So he is saying, he is appealing to that time, the bad time, the lazy laden time, means the time that is passing wastefully. He is appealing to that time. वो जो समय बहुत ही निरर्थक रूप से हमारे जीवन में निकल रहा है, वो उससे अपील करते हुए कहता है, क्या कहता है, कि तुम जल्दी से निकल जाओ, कि वो वो समय जो तुम क्या कर रहे हो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो, तुम जल्दी से मेरे जीवन में से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो गति है वो एक पेंडुलम की गति के समान है. पेस का मतलब भी क्या होता है, स्पीड होता है, कि वो एक पेंडुलम की गति के समान है, तुम जल्दी से निकल जाओ. क्योंकि एंड गर्ट दाई सेल्फ विद व्हाट दाई वॉर्म डेवोर्स एंड ईट इन ए लार्ज क्वांटिटी वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट इन आवर लाइफ, इन फ्रॉम आवर लाइफ. कि जो भी तुम मेरे जीवन से कुछ नुकसान करना चाहते हो, हार्म मी वॉट एवर यू हार्म इन माई लाइफ, नुकसान पहुंचाओ मुझे, जो भी तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, क्योंकि वो समय मेरे लिए क्या है, निरर्थक है, वेस्टफुल है, जो तुम मेरा बर्बाद कर रहे हो. सो विच इज़ नो मोर देन व्हाट इज़ फॉल्स एंड वेन, क्योंकि वो समय मेरे लिए क्या है, नो मोर देन व्हाट इज़ फॉल्स एंड वेन, कि वो मेरे लिए समय जो है वो फॉल्स और वेन के अलावा, यूजलेस टाइम के अलावा कुछ भी नहीं है. एंड मियरली मोर्टल ड्रॉस, और वो केवल क्या है, एक ऐसा समय है जो कि निश्चित रूप से खत्म होगा मेरे जीवन के अंदर. यानी कि द टाइम इज डेफिनेटली एंड इन माई लाइफ. So little is our loss, so little is thy gain. तो इसीलिए कवि कहता है कि so little is our loss, whatever you harm me that will be very useless for me. So that's why it is not much loss for me, and it is also not much gain for you. Clear? Now next stanza. For when as each thing bad you hast endowed, thou मतलब यू. आपको समझना चाहिए इस चीज़ को कि इन लिटरेरी टर्म्स देर आर 3 वर्ड्स, दी, दाई एंड दाउ. दी मीन्स यू, दाई मीन्स योर, एंड अगेन दी मीन यू. ओके, सो व्हाट द पोएट इज सेइंग हियर, for because why is saying that you had not gained so much and there is a very little loss for me of that time. Why the poet is saying so? Because when as each thing's bad, कि when each thing that is bad in my life, you hast means have, कि you have entombed means you have buried, नष्ट करना, खत्म कर देना, एंड अप, कि जो कुछ भी तुमने मेरे जीवन के अंदर खत्म किया है वो मेरे लिए बुरा समय था, इसलिए वो चले गया, तो मुझे उसका कोई नुकसान नहीं है. द टाइम वॉज वेरी सोरोफुल फॉर मी, सो दैट्स वाई इफ द टाइम हैज गॉन देन इट्स नॉट too much beneficial for me. So that's why he's saying that whatever you have taken from me, it's not good for me. And last of all, thy greedy self consumed. And last of all, और अंत में क्या है कि जब तुम्हारा समय निकल गया, दाई means your,
कि योर ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, यानी कि तुमने जो तुम्हारी जो लालच है उसने क्या किया, कंज्यूम किया, फिनिश किया, जो कुछ भी तुमने खत्म किया वो बस केवल क्या है, वही सब मेरे पास में था जो चला गया, जो तुमने ले लिया। क्योंकि इसके बाद में देन कि वॉट एवर यू हैव फिनिश्ड इन माई लाइफ, जो कुछ भी तुमने मेरे जीवन में खत्म कर दिया, तो उस बैड टाइम के बाद में, एज यू हैव फिनिश्ड फ्रॉम माई लाइफ एंड आफ्टर दैट ए गुड टाइम विल कम। आफ्टर बैड टाइम देयर विल बी अ गुड टाइम, कि बैड टाइम के बाद में क्या होगा, गुड टाइम होगा। तो उसने कहा कि जब तुम फिनिश हो जाओगे मेरे लाइफ में, देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट आवर ब्लिस। आफ्टर दैट द लॉन्ग इटर्निटी मीन्स द टाइम विदाउट एंड, दैट नेवर एंड्स, समय जो कभी खत्म नहीं होता। तो कहता है देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट आवर ब्लिस, कि as the bad time will go from my life, after that a long eternity means a time that never ends will greet our bliss, means will welcome me with happiness. Greet means welcome, bliss means happiness. कि जैसे ही बुरा समय समाप्त होगा उसके बाद में एक ऐसा समय आएगा जो मेरे जीवन में कभी खत्म नहीं होगा, और जो क्या करेगा, मेरा स्वागत करेगा बहुत ही खुशियों के साथ में, यानी कि एक खुशियों से भरा हुआ जीवन मेरा जो है वो होगा। उसके बाद में विद एन इंडिविजुअल किस, मीन्स द टाइम विच इज फुल ऑफ हैप्पीनेस विल वेलकम मी पर्सनली, कि वो व्यक्तिगत रूप से मेरा स्वागत करेगा। क्लियर? ओके। एंड जॉय शैल अंडरटेक अस एज ए फ्लड, एंड आफ्टर दैट जॉय विल कम इन माई लाइफ एज ए फ्लड। फ्लड मीन्स बाढ़, कि जिस तरह से बाढ़ आती है तो उसमें पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही बुरे समय के बाद में जब अच्छा समय मेरे जीवन में आएगा तो क्या होगा, वो उस बाढ़ के समान होगा, अर्थात बहुत ज़्यादा, इन लार्ज क्वांटिटी द हैप्पीनेस विल कम इन माई लाइफ। बहुत बड़ी मात्रा में जो एक हैप्पीनेस है वो मेरे जीवन में आएगा, एंड इट विल फिल माई लाइफ विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन एवरीथिंग दैट इज सिंसियरली गुड। और उसके बाद में क्या होगा, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज दैट इज सिंसियरली गुड, जो कि क्या है, बहुत ही सिंसियरली अच्छी है। सिंसियरली मीन्स वी कैन से हियर कि क्वाइटली और कंप्लीटली गुड, कि जो पूरी तरह से अच्छी होगी, एंड परफेक्टली डिवाइन, और वो पूरी तरह से क्या होगी, डिवाइन होगी, रिलेटेड टू गॉड। मीन्स जब हैप्पीनेस आएगी तो वो पूरी तरह से अच्छी और ईश्वर से संबंधित होगी, अर्थात उसके बाद में मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी विद ट्रूथ, एंड आफ्टर दैट माई लाइफ विल फिल फ्रॉम ट्रूथ एंड पीस। सच्चाई और शांति से मेरा जीवन भर जाएगा, एंड लव शैल एवर शाइन, एंड लव विल एवर शाइन इन my life, my happy days, and about the supreme throne, and I will be welcomed, and I will get truth, peace and love around the supreme throne. Supreme throne means supreme God, the throne of God. Okay, so here the poet is talking about the God, that after that my bad days I will be welcomed by the God, and around the supreme throne of God I will get truth, peace, love, and it will fill my life with lot of happiness. Okay students, in previous lines try to understand what we have learned, what the poet is saying here. I am repeating those lines again, listen to it carefully. So when everything that is sincerely good and perfectly divine, with the truth and peace and love shall ever shine about the supreme throne. He is talking about the kingdom of God, heaven. When you will go heaven, or when a person go heaven after death. Okay, so here what the poet is trying to say, that in a person's life, here the poet is talking about the life and death. The poet is saying कि when we are living in this world, we are alive, then time harms us. Okay, but as the time of our life will end in this earth,
And everyone's times the poet is saying that full of sorrow in this earth. So the poet is saying कि when the time on earth of our life will end, after that as we will reach where? In heavenly kingdom. Okay, so that is the thing the poet is saying here. कि for when as each thing bad you has entombed, कि when you buried everything in our life, and last of all the greedy self consumed, and then your greediness, तुम्हारा जो लालच है वो अपने आप में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. मीन्स टाइम when you will end in our life, जब तुम खत्म हो जाओगे हमारे इस जीवन के अंदर, then long eternity shall greet our bliss, यानी कि after that the long eternity, the time, long eternity, eternity means the time never ends. A time where a time never ends. We calculate time on this earth, but in heaven there is no time. So that's why the poet is saying कि then long eternity of time, the time that never ends, at that place God will welcome us personally with happiness. Then long eternity shall greet our bliss with an individual kiss, and joy shall undertake us as a flood, and there the joy will fill us like a flood. वहाँ पर खुशियाँ जो है वो हमें एक भर देगी, किसके समान? फ्लड के समान. जैसे बाढ़ आती है वैसे ही हमारा जो जीवन है वो खुशियों से भर जाएगा. And when everything that is sincerely good, कि this is the place where everything is sincerely good and perfectly divine, means completely divine. The things where everything will be genuinely good and completely divine. Divine means related to God. That is the place where everything is related to God, and we will get there truth, peace, love, and these all things shall ever shine in our life about the supreme throne. Means just around the supreme throne, around the supreme God, there will be only truth, peace, and love. There will be not any type of sorrow there. वहाँ किसी भी प्रकार की जो है वो कोई दुख नहीं होगा कि उसकी मृत्यु के बाद में, यानी कि जैसे ही धरती पर हमारा समय खत्म हो जाएगा, उस समय के बाद में जब हम उस ईश्वर के पास पहुँचेंगे तो वहाँ पर हमारा स्वागत ईश्वर के द्वारा स्वयं किया जाएगा, वो भी व्यक्तिगत रूप से, और हमारा जीवन खुशियों से भरा होगा. उसी ईश्वर के सिंहासन के चारों तरफ हमें क्या मिलेगा? वहाँ उस स्वर्ग में, उस हेवन में हमें प्यार, लव, ट्रूथ, पीस, शांति, ये सब जो है वो हमें वहाँ पर मिलेगी. क्लियर? तो यहाँ तक का हमने पढ़ लिया था कि अबाउट द सुप्रीम थ्रोन. नाउ आफ्टर दैट व्हाट द पोएट इज सेइंग, ऑफ हिम, द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम. हियर हिम इज फॉर गॉड, मीन्स द सुप्रीम थ्रोन ऑफ गॉड, वेयर एवरीथिंग विल बी फुल ऑफ लव, पीस. ओके, to whose happy making sight, कि when we will see his happy making sight, कि जब हम उसको देखेंगे, हैप्पी मेकिंग, खुशियों से भर देने वाली उसकी साइट, उसके दृश्य को, when we will see the God's sight in heaven alone, अकेले, when once our heavenly guided soul shall climb, and we will see it when our heavenly guided soul, because we are a son of God. And the God is guiding us. The poet is saying here that कि ईश्वर ही एक इंसान को क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है. हमारी आत्मा ईश्वर की है और ईश्वर के द्वारा ही उसे चलाया जाता है. तो इसीलिए उसने कहा कि हेवनली गाइडेड, मीन्स गाइडेड फ्रॉम हेवन. हेवन यानी कि गॉड. तो कवि कहता है कि when once our heavenly guided souls, when once our heavenly guided soul shall climb, climb means adopt, कि जब एक बार ये ईश्वर के द्वारा निर्देशित हमारी जो आत्मा है वो कहाँ पहुँच जाएगी? वो ईश्वर के पास पहुँच जाएगी.
तब उस दृश्य को देख करके when we will see, as we will see the scenery over there, then our life will full of happiness. Then all this earthly grossness quiet. After that, when once we climb there, once our soul leave this earth and goes towards the heavenly throne, then everything that is related to earth will end up. कि एक बार जो हम वहाँ पहुँच गए तो ईश्वर जो है उस धरती से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जब धरती से संबंधित सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी तो टाइम भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि कौन सा समय, वो बुरा समय, वो खत्म हो जाएगा। तो अटायर्ड विद स्टार्स वी शैल फॉर एवर सिट। देन अटायर्ड मीन्स डेकोरेटेड with stars, the place that is decorated with stars, we shall forever sit, we will stay forever there, we will not come again, trampling over death, and after that we will win over death. कि once we have died, after that no one will die again. एक बार मृत्यु के बाद में आत्मा ऊपर स्वर्ग में जाने के बाद दोबारा नहीं मरती। तो इसलिए कवि कहता है कि उसके बाद में हम मृत्यु के ऊपर जीत हासिल कर लेंगे। एंड चांस एंड दी, एंड दी मीन्स यू। चांस मीन्स वो जो चांस हमें इस धरती पर मिलते हैं उन चांसेस पर हम जीत हासिल कर लेंगे। एंड दी यू, दी मीन्स यू, और हम तुम पर भी विजय हासिल कर लेंगे। और किसके लिए ये यू आया है? ऑन टाइम, कि उस समय वी विल विन you also. After that, once when we go into the heavenly into the heaven, once we go into the heaven, then you will never harm us, you can't make us again sad. तुम हमें एक बार फिर दुखी नहीं कर सकते, तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए तब हम क्या करेंगे, हम तुम पर भी जीत हासिल कर लेंगे ओ टाइम। Clear? So this is the explanation of your second poem. I hope you will understand it very well. Thank you.